ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست میں اکبر نام کا بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ وہ بادشاہی کے لیے نئے جانشین کا انتخاب کرے۔ اب میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ چند سال بعد مجھے اس دنیا سے الوداع ہونا پڑے گا اور اپنی سلطنت اپنے بیٹوں کے حوالے کرنی ہوگی۔ ایسی باتیں نہ بولیں بادشاہ سلامت، ابھی تو آپ بہت جئیں گے۔ کوئی بھی اس زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ میرے 3 بیٹوں میں سے وہ کون ہوگا جو عوام کو ساتھ لے کر چلے گا اور ایک اچھا بادشاہ بن پائے گا۔ اب اس کا امتحان شاید وقت ہی لے گا، اب آپ اسے وقت پر ہی چھوڑ دیں۔ بادشاہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ وقت پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ارشاد صاحب، مجھے ابھی ایک ترکیب مل گئی ہے۔ میں اب اپنے بچوں کا امتحان لے سکوں گا اور پتہ کر سکوں گا کہ ان تینوں میں سے کون بادشاہ بننے کے قابل ہے۔ بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے دوست رحمان کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیسے ہو رحمان؟ ارے اتنے بڑے بادشاہ آج میرے غریب خانے میں کیسے؟ میں اس دنیا کی نظروں میں بادشاہ ہوں، لیکن تمہارا تو بچپن کا دوست ہوں نا، کیوں رحمان؟ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ بادشاہ خود اپنے دوست کے گھر آیا ہے، کیوں بادشاہ؟ اب تو مجھے جو بھی کہو، سچ تو یہی ہے کہ میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں۔ آپ کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے بادشاہ، آپ کو بھلا میری مدد کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ یہ کام میرا تم ہی کر سکتے ہو۔ جی بتائیے نا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اصل میں کچھ سالوں بعد میری حالت نہیں رہے گی سلطنت سنبھالنے کی، اور مجھے اپنے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو تخت دینا پڑے گا۔ اب کون اس تخت کا اصل حقدار ہے، کون سچ میں بادشاہ بننے کے قابل ہے، اب یہ پتہ کرنے کے لیے تمہیں اور مجھے مل کر ایک کھیل کھیلنا ہوگا۔ کیسا کھیل بادشاہ؟ اور پھر بادشاہ رحمان کے کان میں سب کچھ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں یہ بہت اچھے سے کر لوں گا بادشاہ۔ اس کھیل سے یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے تینوں بیٹوں میں سے کون ایک سچا انسان ہے اور عوام کی حفاظت کون کر سکتا ہے، اور اسی بیٹے کو میں تخت دے دوں گا۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ کے بڑے بیٹے کا نام عدنان، بادشاہ کے دوسرے بیٹے کا نام نعمان اور سب سے چھوٹے والے بیٹے کا نام حیدر تھا۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں کو ایک ایک کر کے ایک کمرے میں بلاتا ہے۔ بادشاہ کا پہلا بیٹا عدنان حاضر ہوا۔ سلامت ابا جان۔ عدنان، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ تم سب سے زیادہ قابل ہو، اسی لیے تمہیں میرے تخت کا وارث چنا جائے۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا ابا جان۔ ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ۔ یہ بات ابھی کسی سے کہنا مت کہ میں نے تمہیں اگلے بادشاہ کے روپ میں چنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ دوسرے بیٹے نعمان کو اندر بلاتا ہے اور اسے بھی یہی بات کہتا ہے کہ وہ اگلا بادشاہ بنے گا۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا بیٹا حیدر اندر جاتا ہے۔ بادشاہ اسے بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ اگلا بادشاہ اسے چنا جائے گا۔ وہاں وزیر ارشاد صاحب بھی تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ نے تینوں شہزادوں کو تخت کا وعدہ کر دیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تم بس دیکھتے جاؤ ارشاد صاحب، ان تینوں شہزادوں کا اب امتحان ہونے والا ہے۔ تینوں بھائی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے،
लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना एक इम्तिहान से होने वाला है और इसमें कामयाब होने के बाद ही इन्हें वो तख्त मिलेगा। कई दिन गुजर जाते हैं। तीनों भाई बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे थे। फिर अचानक ही एक पंचायत बुलाई जाती है। इसमें बादशाह था, उसका वजीर इरशाद साहब भी था, एक सिपाही था, बादशाह के तीनों बेटे भी थे। इन सब के अलावा वहाँ पर एक कैदी भी था जिसको सजा दी जाने वाली थी। वो कैदी कोई और नहीं बल्कि रहमान ही था, जो कि सिर्फ कैदी होने का ड्रामा कर रहा था। क्या हुआ अब्बा जान? इस कैदी का जुर्म क्या है और इसे क्या सजा दी जाने वाली है? इसे इसी वक्त फांसी दी जाने वाली है। लेकिन फांसी ही क्यों? इसका कसूर क्या है? ये इंसान आज मुझे भरे बाजार में यानी कि मुझे गालियां दे रहा था। बादशाह के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है इसकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? इतने छोटे जुर्म के बदले में इतनी बड़ी सजा, ये तो नाइंसाफी होगी अब्बा जान। अब तुम मुझे समझाओगे कि इंसाफ और नाइंसाफी क्या होती है। इसने सबके सामने मुझे उल्टा सीधा कहा है, आज तो इसे सजा मिलके ही रहेगी। ये तो गलत है अब्बा जान। हर किसी को अपनी राय देने की आजादी होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई हद से बाहर जाकर बोलता है तो मैं आप तीनों शहजादों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि बादशाह से कहिए मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बादशाह सोचने लगा, हा। ये रहमान तो बहुत अच्छा ड्रामा कर रहा है। वाह रहमान, तुम तो फनकार निकले। अब्बा जान, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, और कौन कौन है तुम में से जो इस फैसले के खिलाफ है और इस मुजरम को बचाना चाहता है? दूसरा बेटा बोलता है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ अब्बा जान। और फिर तीसरा बेटा बोलता है, हाँ अब्बा जान, मैं भी इसके खिलाफ ही हूँ। वाह, मेरे तीनों बेटे इंसाफ करने की समझ रखते हैं। ये समझते हैं कि किस जुर्म की क्या सजा है। मतलब तुम तीनों यही चाहते हो कि कैदी को सजाए मौत ना दी जाए। ठीक है, तुम तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आओ। बादशाह अपने कमरे में चला जाता है और सबसे पहले अपने दूसरे बेटे को अंदर बुलाता है। सलाम अब्बा जान। तो तुमने अपना जहन बना लिया है कि तुम इस मुजरिम को मौत की सजा नहीं दिलवाना चाहते? जी अब्बा जान, मुझे लगता है कि मुजरिम को छोड़ने से जुर्म के लिए बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं इसकी मौत की सजा को रोक देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना तख्त छोड़ना होगा। क्या 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 अब्बा जान? हाँ, तुम एक बादशाह के फैसले को बदलने का कह रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। मैंने तुम्हें जो तख्त देने का वादा किया था, तुम्हें इस तख्त को हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। बोलो बोलो, तैयार हो इसके लिए? वो कुछ देर सोचता है। अब्बा जान, मैं एक आम इंसान की जान बचाने के लिए अपना मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकता। अब आप उसे सजाए मौत दे दीजिए। वाह, वैसे तो बड़े इंसाफ की बातें कर रहा था। जब कुर्बानी देने की बारी आई तो अपने पाँव पीछे हटा रहा है। ये तो बादशाह बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद बादशाह अपने बड़े बेटे को अंदर बुलाता है। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी को सजाए मौत ना मिले तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी जान के बदले में तुम्हें अपने मुस्तकबिल में मिलने वाला तख्त छोड़ना होगा। वो फौरन बोलता है, क्या एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के बदले में अपना तख्त छोड़ दूं? ये कभी भी नहीं होगा अब्बा जान। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे दूं।
आप दीजिए इसको सजाए मौत। क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दीजिए इसको सजा। बादशाह उदास हो जाता है कि उसका पहला बेटा भी पलट गया है। अब बादशाह को सिर्फ अपने आखिरी बेटे पर उम्मीद थी। सलाम अब्बा जान। बेटा, क्या तुम इस मुजरम को सजा देने के खिलाफ हो? जी अब्बा जान, इंसाफ यही कहता है कि जितना बड़ा जुर्म हो सजा सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए, ना ही बड़े जुर्म के लिए थोड़ी सजा मिलनी चाहिए और ना ही छोटे जुर्म के लिए बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना फैसला बदल लूं और मुजरम की जान बख्श दूं, तो तुम्हें उसके लिए खुद कुछ कुर्बानी देनी होगी। जी, उस इंसान को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें अपना जानशीन बनाऊंगा, बस तुम्हें यही कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान बच जाए तो तुम्हें बादशाह बनने का ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। दुनिया का कोई भी तख्त आवाम से बढ़कर नहीं होता और लोगों के साथ नाइंसाफी अगर मैं होने दूंगा तो वैसे भी मैं बादशाह बनने के काबिल नहीं रहूंगा। हाँ, आखिरकार मुझे अपना जानशीन मिल ही गया। मेरे बाकी दोनों बेटे मुफाद को अवाम से ऊपर रखते थे, लेकिन हैदर तुम इन दोनों बेटों से अलग हो। तुम लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए अपना तख्त छोड़ने के लिए तैयार हो। वाह बेटे वाह, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो मेरे बेटे। कैसा इम्तिहान अब्बा जान? आओ मैं तुम्हें इस मुजरम से मिलाता हूँ। तभी रहमान अंदर आता है। वो बहुत खुश था, उसकी हालत बहुत अच्छी थी। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक मुजरिम है जिसको सजाए मौत दी जाने वाली है। मेरे अभी के बादशाह और मुस्तकबिल के बादशाह दोनों को सलाम। इस इंसान ने कोई भी जुर्म नहीं किया और इसको सजाए मौत नहीं दी जाने वाली। ये मेरे बचपन का दोस्त रहमान है, जिसके साथ मैंने मिलकर ये ड्रामा किया और अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लिया। इस इम्तिहान में पहला बेटा अदनान और दूसरा नुमान कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मेरा तीसरा बेटा हैदर अपनी ईमानदारी की वजह से कामयाब हो गया। अब्बा जान, आपने मुझे बचपन से जो कुछ भी सिखाया है वो ही मैंने सीखा है। मैं जानता हूँ कि दुनिया में आवाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बादशाह कभी भी बेगुनाहों को सजा नहीं देता। वाह, तुम ही इस तख्त के काबिल हो। हैदर को बादशाही का जानशीन बना देता है। दोनों भाई बहुत उदास हो जाते हैं। देखा बच्चों, बेईमानी की वजह से दोनों बेटे नाकाम हो गए और एक बेटे को ईमानदारी की वजह से कितनी बड़ी सल्तनत मिल गई। देखा बच्चों, ईमानदारी एक अच्छी सिफ्त है।